Okay, everybody completed the calculator program. I saw only one person, so I'll not be going into too much deep. Just I'll show you because we have already covered this. So yesterday, if you have seen what you have covered, I'll direct go to the classes. Okay. So this is our Python. If you see over here, this one area, I've created a new folder over here. Okay. Session 15, you can see. Inside that, this is my calculator program where I have, this is the calculator program folder. Inside that, my program is there. If I extend this is the calcops module I have written. Okay. And this is the calculator PI main function. This is the module or function library. Okay. So if we expand here, what are the two things you can see? I have already told you two tricks were there, right? As part of the assignment. One was advanced calculus, another is general calculus. Okay, I have created already for you. Just see it once. I'll send you the code in the code in the file. You have to just place it inside and then see it. That's why you remember this. Okay, this is the whole calculator program. Okay, let me remove everything. I'll rewrite everything anyway. This is the whole calculator program from here to here. This is the main. This is the modular library. Everybody understood? Yesterday we have already covered, right? Yes, sir. Underscore init.py, why it is needed? To make it a model, to import something like this. Okay, it is an empty file. And there are two files we are creating over here in our last class example. What is general calculus, which will consist of all add, subtract, multiple, divide, mod, floor division, and exponent, right? Remember everybody? Where two things were needed, two variables are needed. Yes, sir. Advanced calculus, what we told? Sum of natural numbers and Only factorial. only factorial and sum of n numbers, which will be only one variable needed. Okay, one variable needed. So that's why I have made it two different functions. If you see, this is how we are calling them. Let me show you. This is the add, subtract, multiply, divide, same thing. Okay, there is no change over here. Okay, I have renamed it general calculus, and this advanced calculus have all the two function factorial and sum of natural numbers. Okay, understood? And how we are calling them? We have created inside calculus. We are just calling them from accessing them from like calculus dot general calculus or calculus dot advanced calculus. And these two, these are the functions which will be just imported. And even in downside, if you go, you are just using it. Okay, in every class, like every choice. Okay, the same function we have already explained. Any doubt is here? I'll Yes, sir. explain. I have a doubt in this. Like, sir, ଆମେ जो ଆପଣ जो लिखिले advanced calc operations ଆଉ general calc operations ରେ Mm-hmm. ଆମେ as it is program ଟା ଲେଖୁଛୁ like ମାନେ plus minus ହଉ division ହଉ factorial ହଉ ସବୁ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ sir. Mm-hmm. ସାର୍ ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାଠି ଆସିକି ଯୋଉ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ପିୱାଇ ଏଇ ଜାଗାଠି ଆସିକି ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଗୁରା କଲ୍ କରୁଛୁ ରାଇଟ୍। Import କରୁଛେ। ୟେସ୍ ସାର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ସାର୍ ଦେନ୍ ହଁ। ମୁଁ ପଚାରିବାଟା ସାର୍ ଏଇଟା ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିବା ବଦଳ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଦରକାର ସାର୍ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିବାଟା ଇଜ ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତମକୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଶୁଣ ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ କରୁଛ ଲେଟ୍ ସେ ସାଇନ୍ ଅପସନ ଅପରେସନ। ଓକେ, ଗୋଟେ ମନେକର ସାଇନ୍ ଅପରେସନ କରିବ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଅଫ ଲେଟ୍ ସେ ସମ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାର କରିବ। ତମେ କେମିତି ଲେଖିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା? ୟେସ୍ ସାର୍ ସାଇନ୍ 30ର ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ତ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ୟେସ୍ ସାର୍ ବଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଟ୍ ବଟ୍ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିବା ହେଲେ ତମକୁ ସବୁ ଜାଗା ଜିନିଷ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହ୍ୱାଟ ଇଫ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଲି। सर हिंदी ମନେକର या इंग्लिश ଦିସ୍ बोले थे। କ୍ୟାଲକପ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସରି, हिंदी या इंग्लिश सर, हिंदी अरे इंग्लिश। अरे या सॉरी सॉरी प्रिंस। ओके,
सो ही उसने उड़िया स्टार्ट कर दिया तो मैंने उड़िया में सॉरी स्टार्ट सर। कर दिया सर एनी। मेरा क्वेश्चन ये था कि समझ सर, गया समझ गया समझ गया, मैं ये बोल रहा हूँ। सर सर नहीं, अच्छा, उसको थोड़ा आदित्य समझने का, के लिए फिर से बोल रहा हूँ। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। ओके सर। इसका आदित्य का क्वेश्चन ये था कि हम लोग जो ये लिख रहे हैं, ऐसा कैलकप्स करके एक प्रोग्राम बनाए, मॉड्यूल बनाए, उसका यूज क्या है, राइट? व्हाई डू यू नीड दिस? हम लोग तो इसके अंदर लिख सकते थे डायरेक्टली। यस सर। तो क्वेश्चन यह आता है कि तुम इसको बार बार लिखना चाहोगे कि एक बार लिखना चाहोगे? अगर सोचो, मैं ये कैलकॉप्स को एज एन मॉड्यूल करके तुमको दे दिया, ये तुम्हारे पास अवेलेबल है, और कैलकुलेटर पीवाई में तुम लोग खाली इंपोर्ट करके लिखते हो। सिमिलरली अगर पाइथन में जाओगे, हम लोग यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट नहीं किए। अगर सोचो, लिस्ट का जो फंक्शनलिटी है, या कोई मैथ जैसे इंपोर्ट करके वो मैथ लेके आते हैं, उसके बाद कुछ भी हम लोग यूज कर लेते हैं, इंपोर्ट करके पांडास करके ले लाए। सोचो कि पांडास का पूरा डेटा फ्रेम का पूरा कोड तुमको यहीं पे लिखना पड़ता, तुम लिखते क्या? अभी सर नहीं होगा, मतलब बहुत बड़ा रहेगा, बहुत सारे चीजें रहेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स वाई दिस मॉड्यूलराइजेशन और लाइब्रेरी फंक्शंस कम्स इनटू पिक्चर, कि तुमको सारे चीज नहीं लिखने हैं। ये आर्ट सब्सट्रैक्ट में काल्क कब से मॉड्यूल बना के, काल्क मॉड्यूल बना के तुमको दे दिया। अभी तुमको जब यूज करना है, बस आर्ट सब्सट्रैक्ट करके लिखना है। सिमिलरली मैं अगर इंपोर्ट पांडास करता हूं, इट हैज ऑल द फंक्शन नीडेड इनसाइड इट। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, फ्रॉम, सिमिलर वे, देखो यहां पे देखोगे तो समझ में आओगे। पांडास इंपोर्ट व्हाट, डाटा फ्रेम, डेटा फ्रेम आ गया। अभी सोचो, डेटा फ्रेम इज ए क्लास, ठीक है, सिमिलरली फंक्शन भी है, ठीक है, इसके अंदर फंक्शन भी है। अगर तुमको चाहिए तो अगर देखोगे तो रीड से ये सारे फंक्शन तुम अगर यहीं पे इंप्लीमेंट करने चाहोगे, कितना टाइम लगेगा और कितना दिन में लिख के कंप्लीट करोगे इसको? समझ रहे हो? यस सर, यस सर। तो इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी फंक्शन लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, वी नीड कि ये मॉड्यूल हम लोग को पूरा से स्क्रैच से, यहाँ पे हम लोग ऐड है, छोटा मॉड्यूल है, इसलिए तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है। फैक्टोरियल समझना चाहिए, ये छोटा छोटा थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। बट सोचो, एक एक फंक्शन है जो कि उसके अंदर फंक्शन है, उसके अंदर फंक्शन है, उसके अंदर फंक्शन है, और ये नेस्टेड फंक्शन होगा। सोचो कि 50,000 लाइन का कोड है अंदर, और वो ऑपरेशन को मेरे को यहाँ पे खाली एक लाइन में मेरे को दिया जा रहा है, जो कि मैं खाली फंक्शन कॉल करके एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पे ऐड हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। सिमिलरली कोई एक सिमिलर फंक्शन है जिसको मैं सिंगल फंक्शन कॉल करके एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट? यस सर। सोचो कि तुम एक मॉड्यूल बना रहे हो और एक एक कोड लिख रहे हो, जहां पे ये वाला जो फैक्टोरियल नंबर है ना, ये जो फैक्टोरियल वाला है, जैसे एग्जांपल दे रहा फैक्टोरियल वाला है, मिनिमम यस डेढ़ सर। सौ जगह पे तुमको फैक्टोरियल यूज करना है। ओके। 150 जगह पे। यस सर। सोचो, ईच प्लेसेस में जब भी तुम करते हो तुमको फैक्टोरियल कॉल करना है, उसके बाद फिर से जाते हो स्क्वायर रूट कॉल करना है, फिर से जाते हो सबनेचुरल कॉल करना है, फिर से फैक्टोरियल कॉल करना है, फिर से फैक्टोरियल कॉल, ऐसे करके 150 200 बार करना है। तो ओके। मैं 150 200 बार वो फैक्टोरियल को लिखने जाऊं, कि एक मॉड्यूल को लिख दूं, जो कि ये कैलकप्स को मैं एक कॉमन जगह पे रख दूंगा, यहाँ पे कैलकुलेटर लिख दिया, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख दिया, यहाँ पे वाई जेड लिख दिया, और ये कैलकप्स को जस्ट मैं इंपोर्ट करूंगा और यूज करूंगा, यस सर, दिस विल बी इजी, राइट? राइट? बिकॉज यस आई सर। डोंट हैव टू राइट ऑल द थिंग्स इन द सेम फंक्शन इटसेल्फ। यस सर, अगेन एंड अगेन नहीं लिखना। एग्जैक्टली, तो मैं एक जगह पे लिख दिया और उसको खाली इंपोर्ट करूंगा और उसको लिखता जाऊंगा, उसका प्रोग्राम। मेरे को खाली इतना ही जानना जरूरी होता है कि क्या उसका, वो कहाँ पे है, कौन से मॉड्यूल में है, राइट? यस सर। सिमिलरली जब भी तुम कोई भी काम करते हो, जैसे कोई भी मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो, जैसे मैथ हो गया, नंपाई हो गया, पैंडास हो गया, दीज आर ऑल लाइब्रेरीज, दीज आर ऑल मॉड्यूल्स फंक्शंस एंड ऑल। इसके अंदर छोटे छोटे फंक्शंस लिखे हुए हैं। अगर तुम जाओगे अभी या देखोगे, देखो मैं जैसे एग्जांपल दिखा देता हूं, इंपोर्ट numpy, सॉरी, फ्रॉम numpy इंपोर्ट, लेट्स से ऐड, यहाँ पे भी एक ऐड फंक्शन है। अगर इसमें जाओगे, देखो कैसे लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है। ये यहाँ पे कॉल कर दिया। अगर सोचो इसको मैं, नहीं नहीं, ये वाला नहीं ऐड, इसको एक ऐड अंडरस्कोर वन कर देते, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा ना। ये देखो देखो ये वाला दिख रहा है, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, राइट? यस सर। इसके अंदर जाता है, इसमें बीट वाइज करता है, कैसे कैसे करके देखो, ये फंक्शन लिखा हुआ है, दिख रहा है कैसे कैसे, ये देखो दिख रहा है कैसे लिखा हुआ है।
इसके अंदर ये सारे, इमेजिन कि ये सब चीज को तुमको लोकली लिखना पड़ रहा है, करोगे क्या? नहीं देखो सर, रिड्यूस का फंक्शन लिखा हुआ है, रिड्यूस का सालों लग फंक्शन जाएंगे इसके। तो नहीं लिख सकते। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग जो फॉलो करते हैं कि एक ही फंक्शन को हम मैं लिख दूं और उसी फंक्शन को यूज करता चलता फिर। ठीक है। तो ओके मेरे को सर। ये इजी होता है। और मेरे को मल्टीपल रीडेबिलिटी होता है। रीडेबिलिटी, कोड रिडंडेंसी एक कंसेप्ट होता है। कोड रिडंडेंसी मतलब मैं एक चीज को बार 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 नहीं बार लिखूं, यूज कर सकते हैं, यस सर। तो उसको एक बार लिखूं और मल्टीपल बार यूज कर सकता हूं। यस ठीक है। सर। यस तो सर। कोड रीडेबिलिटी के लिए अच्छा है, सोचो कि एक लाइन में मैंने कोड भी लिख दिया और मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया, और पूरा का पूरा चीज एक जगह पे कॉमन फोल्डर में रह गया जहां पे मैं जिसको कहाँ पे भी इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकता हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मॉड्यूलर लाइब्रेरी। क्लियर? यस सर, पूरा क्लियर है अभी। ठीक है। अभी अभी मैंने दो चार और कंसेप्ट बोला था, एक दूसरा चीज बोला था कि तुम लोग कवर करके आना बी टू एज अपलोड वगैरह। जो जो मैंने कवर नहीं किया था, क्या क्या कवर नहीं किया था, मैं एंड और कवर कर लिया था, बाकी तुम लोग को बोला था एक्जर वगैरह कवर करने के लिए। सोचो एक्जर हम लोग कल लास्ट में जाते जाते कवर किए थे। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे अगर 5 और 3 है, 1 0 1, उसके बाद क्या आएगा? 0 1 1। 0 1 1। इस केस में क्या आएगा आउटपुट? बताओ एक्जर होगा होगा तो। सर एक सर। एक्जर का ये जस्ट फॉर्मूला। हाँ सर, फर्स्ट वाला वाला तो वन सर, दो। फर्स्ट वाला वन आएगा। हाँ। ये वन भी वन आएगा। वन जीरो जीरो। आएगा। 1 0। तो ये समझ में सबको आया गया था। टू यस टू द सर। फोर, टू 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 द द वन, पावर टू टू फोर, द टू द जीरो, वन, सिक्स। एंड 4 + 2 = 6। 6। तो ये आउटपुट है, राइट। यस सर। यस सर। इसको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। सबको क्लियर है ये ऑपरेटर में क्या क्या है? चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ये दो तीन चीज मैंने कवर कल नहीं किया था जानबूझ के, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोला था कि थोड़ा पढ़ के आओ। ठीक है। ये तीनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट कभी भी एग्जाम्पल में मतलब ज्यादा यूज नहीं होता। बट एक चीज कंसेप्ट समझ के रख लो कैसे होता है। ठीक है। अगर तुमको बताया जाए बी टू एज नॉट, अगर सोचो यहाँ पे मैं नॉट ऑफ 5 देता हूं, हमेशा याद रखो इसका आउटपुट कैसा आता है। हमेशा, अगर ये एक से, जो सोचो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये एक फॉर्मूला दिख रहा है। यस सर। सो दिस इज द फॉर्मूला। जब भी मैं किसी चीज का बोलूंगा कि नॉट, उसके अंदर क्या रहेगा? -(x+1). अगर नॉट ऑफ एक्स है, -(x+1). इसके डिटेल्स में नहीं जाता हूं, अगर डिटेल्स में चाहोगे तो बहुत डिटेल्स में जाऊंगा, उसके लिए क्या साइंड इंटीजर पढ़ाना पड़ेगा, ऑन साइंड इंटीजर पढ़ाना पड़ेगा, उसको कैसे 0 0 0 0 इंटरनल होके जाता है 8 बिट में समझाना पड़ेगा। इससे इतने डिटेल्स में नहीं जाते, बस ओवरऑल समझो। ये फॉर्मूला याद रख लो, माइनस ओके। मॉड ऑफ, सॉरी, नॉट ऑफ एक्स इक्वल टू -(x+1). जो किसी चीज का नॉट बोलेगा उसको अंदर डालो, 5 + 1 6 -6। समझ में आ यस जाए? सिमिलरली अगर मैंने ऐसे दिया नॉट ऑफ -110, क्या होगा? प्लस हो माइनस ऑफ जाएगा। -110 + 1। जैसे जैसे जो भी एक्स के जगह जो है उसको डालो, क्या होगा? -(-109). आउटपुट क्या आया? 109 दिख रहा। यस सर। -13 दिया, -13 + 1, देन माइनस, -12, माइनस माइनस ट्वेल्व। माइनस प्लस ट्वेल्व 12। अगर सोचो 7 दिया, नॉट ऑफ 7, -(7+1) प्लस वन -8। -8। ठीक है। दिस इज द फंक्शन फॉर नॉट। ठीक है, क्लियर हुआ? ये तीनों यस देखो सर। एग्जांपल देख लो, मैं रन करके नहीं देख रहा हूं, ये तीन एग्जांपल मैंने यहाँ पे रन करके ऑलरेडी पुट करके आउटपुट दे दिया है तुम लोगों को। ठीक है, देख लो। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अभी चलते हैं लेफ्ट शिफ्ट में। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, अभी ये पढ़ के आएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो पढ़ के नहीं आया तो मैंने इसलिए बोला था कि थोड़ा रीड करके आना तो इजी होगा तुम लोग का असाइन करने के लिए। ठीक है। अभी होता है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या होता है? जैसे 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 है, लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर है ये वाला, राइट शिफ्ट का ऑपरेटर ये है, मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है आरो मार्क देखो, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट शिफ्ट, राइट की तरफ जा रहा है तो राइट शिफ्ट। समझ में आया? आरो मार्क किस तरफ है? लेफ्ट। तो ये क्या हुआ? लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। शिफ्ट। आर्मर किस तरफ है? राइट राइट। शिफ्ट। राइट साइड।
समझ में आया? अभी Yes. अभी अभी ये दिखाते हैं कि तो ये चीज का कैसे लेफ्ट शिफ्ट होता है, ठीक है, बीट्स में समझा देता हूँ। ये इजी है थोड़ा, समझ जाओ। 5 को कैसे लिखेंगे? 1 0 1, राइट। यस सर। अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा तो एक शिफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो यस कैसे सर। होगा? यहाँ पहले क्या है? जीरो है। जीरो था। 1 0 1 0, राइट। यस सर। अरे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा ना, 1 0 1 यहाँ पे आ गया, लास्ट में जीरो सर आ गया। लास्ट में जीरो ऐड होता है। समझ में आया? यस सर। ये 1 0 1 था। ये क्या होगा? 8, 2 to the 3 है ना, यस सर। 2 to the 2 टू है, 2 to the 1, टू 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 वन जीरो। टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हुआ? 8 हो गया। ये क्या हो गया? और ये 2। टू 10 हो गया। 10 हो 10. गया। तो इसलिए इसका 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 किया तो क्या आउटपुट आया? 10। 10। 10. समझ में आया? इसको रन करके यस भी देख सर। सकते हो इफ यू वांट। सिमिलरली अगर राइट शिफ्ट होता है तो क्या होगा? सर राइट को शिफ्ट होता है। 1 0 1। Right. तो राइट यस की सर। शिफ्ट होगा तो सोचो, ये जो 1 बिट Zero ये one. कैंसिल जीरो हो गया, वन। राइट। ये यस तो सर। चला गया। You cancel अभी it. क्या यस सर। आएगा? 0 1 0। 0 1 0। 2 to the 2, 2 to the 1, 2 to the 0, 2 to the 1 इक्वल टू। टू। यस सर। तो Two. आउटपुट क्या आया? टू। Two. समझ में आया? क्लियर? यस सर। Yes. कोई डाउट नहीं है इसमें? नो सर। Right. इसलिए बोला था तुम थोड़ा पढ़ के आओगे तो मैं ज्यादा जल्दी से पढ़ा सकता हूँ इसको। कुछ समझ, खाली थोड़ा समझने के बाद इसके लिए थोड़ा ये याद कर लो। क्योंकि अगर मैं इसके डिटेल्स में समझाने जाऊंगा तो उसके लिए बीट साइंड बीट पढ़ाना पड़ेगा, जिसमें तुम ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, बस ये खाली फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला एक चीज। कहीं श्योर भी सर। पूछते हैं, ज्यादातर ये आता नहीं है कहीं पे इतना ज्यादा, बट कोई अगर पूछे तो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. ओके, ठीक है, ये गया। अभी हम लोग आते हैं, ये हम लोग का कल का टास्क खत्म हो गया। अभी हम लोग चलते हैं अपना एक चीज जो कि हम लोगों ने कवर नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। ये फॉर कंटिन्यू पास हम लोगों ने कवर नहीं किया था, याद है? Yes, sir. ओके। अब अभी समझो, जब भी मेरे को कोई भी लूप, जैसे हम लोग फॉर आई इन रेंज करके 10 तक घुमाते हैं, या कोई हम लोग को लगता है कि कहीं पे भी एक लूप है जो कि एग्जिट कभी करेगा नहीं, उस केस में कहीं पे अगर इमीडिएटली हम लोग को एग्जिट करना है वो लूप, उसके लिए हम लोग ब्रेक यूज करते हैं। यस सर। इन केस ऑफ एनी कंडीशन मैचेस, इफ आई वांट टू डू समथिंग, लेट्स से ओवर हियर इफ यू सी, मैंने क्या किया? फॉर आई इन रेंज 10, तो ये क्या होगा? इसका Zero आउटपुट to क्या? nine. 0 to 9 तक जाएगा। बट मैंने क्या किया? 0 to 5 तक गया है, अगर आई इक्वल टू 5, देन ब्रेक। व्हाट विल हैपन? हम लोग करके एक बार 0 से देख 4 लेते तक प्रिंट होगा. तो निकल जाएगी। Yes, sir. हैं। एग्जैक्टली, निकल जाएगा उस लूप से। तो इसको अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं, ये सेशन 15 है ना, देख लो कैसे होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर डॉट, सॉरी, ब्रेक डॉट पी वाई, देखो, ठीक है। तो इसको मैं अगर प्रिंट करूं, देखो, 0 to 4 तक गया, उसको 5 हुआ। और ये ब्रेक को अगर मैं हटा देता हूं, इसको अगर कमेंट करके, अरे यहाँ पे बस एक ऐसा लिख देता हूं, अरे क्या कमेंट कर रहा हूँ, मेरे कमेंट ही नहीं हो रहा है। हाँ, इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि सोचो कि 5 = 5, प्रिंट आई, समथिंग लाइक दिस, तो इसमें क्या प्रिंट होगा? देखो, 0 से 9 तक गया पूरा का पूरा, राइट। क्यों? क्योंकि ये मेरे को ब्रेक करना है, तो जहां पे मेरा यस सर। कंडीशन, जहां पे ट्रू मेरा होता कंडीशन है है, वहां से एग्जिट हो जाना था, बट हम लोग उसको कमेंट कर दिया, सो वो और लिया नहीं उसको। तो ये यहाँ पे बस 2 बार 5 प्रिंट हो गया, राइट। क्योंकि यस। एक बार बाहर लूप में, एक बार बस अंदर लूप में, यस। राइट। यस सर। समझ में आया? दिस इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर ब्रेक, जहां पे हम लोग को ब्रेक करना है, एग्जिट द लूप। सो जहां पे मेरे को 5 एग्जिट ये किया, तो वहां पे मेरे को ये फॉर लूप ब्रेक कर दिया पूरा, ये लूप से ही बाहर निकल गया, ब्रेक। समझ में आया? ये पूरा क्लियर?
ये एक यस सर। एग्जांपल देके बता दिया, सिमिलरली कहीं पे यस भी यूज सर। कर सकते हो। ये हम लोग ऑलरेडी यूज किए हुए हैं, कहाँ पे बताओ? सर जीरो पे यूज किए हैं, अगर जीरो हो तो एग्जिट करके। और कहाँ पे यूज किए हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जीरो सबको समझना है, कैलकुलेटर प्रोग्राम, ठीक यस से सर। बोलना पड़ेगा। ओके जीरो हम सॉरी। लोग जब यूज करते हैं यहाँ पे देखो, यस सर, कैलकुलेट प्रोग्राम में एग्जिट होता है। यहाँ पे कैलकुलेटर प्रोग्राम में अगर तुम जाओगे, अगर मैं जीरो यूज करता हूँ, देखो ये ब्रेक होता है। यस सर। सबको 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 समझ में आया कैसे ब्रेक होता है? यस सर, समझा सबको? कंडीशन ट्रू हो गई तो सर ब्रेक हो गया। एग्जैक्टली जब तक नहीं तो ये एक इन्फिनिट लूप है, राइट? वाइल ट्रू मतलब हमेशा ट्रू है। तो इन्फिनिट लूप को ब्रेक करने के लिए हमेशा ब्रेक यूज करते हैं। एग्री? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? आ गया ये, कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होता है? सर जो आगे भी बढ़ता कंटिन्यू रहता रहेगा। जिस कंडीशन में वो कंडीशन मैच करेगा, वही करंट इटरेशन को वो स्किप कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूं, तुमको समझ में आएगा। देखो, जिसमें मैच कर जाएगा उसको छोड़ के फिर अगला वाला रिजल्ट प्रिंट कर देगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली गुड। तो यहां पे अगर मैं जाता हूं कंट्रोल स्ट्रक्चर कंटिन्यू डॉट पी वाई, यहां पे देखो कैसे होता है। तो यहां पे क्या होना चाहिए? रेंज 10 कर देता हूं, सेम, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या होगा। पाइथन कंट्रोल स्ट्रक्चर कंटिन्यू, देखो क्या हुआ। आई इन रेंज 10 मतलब 0 to 9 तक। उसने क्या किया, आई मॉड टू इक्वल टू जीरो जहां पे है, मतलब जो भी इवन नंबर है, राइट? आई मॉड टू इक्वल टू है। जीरो यस इक्वल सर। इवन नंबर ना, दिस यस इज सर। इवन यस नंबर सर। कंडीशन, राइट? यस जो सर। इवन नंबर है उस केस में कंटिन्यू कर दो, नेक्स्ट लूप में चले जाओ। सो उसने ओके। क्या किया, 0 to 9 का जब केस लिया, पहले जीरो लिया, यहाँ पे देखिए इक्वल टू जो कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद वन लिया, वन मॉड इक्वल टू जीरो नहीं है तो प्रिंट कर दिया वन। उसके बाद टू गया, टू मॉड इक्वल टू जीरो है, कंटिन्यू कर दिया। थ्री गया, थ्री प्रिंट किया। ऐसे कर करके 9 तक गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को बस ऑड नंबर मिले, राइट? यस सर। यस सर सर। टाइम सिनेरियोस में हम लोग ये कंटिन्यू मतलब किस प्लेसेस में ऐसे यूज कर सकते हैं? जैसे जैसे ये वाला सिनेरियो है, जैसे हम लोग को अगर यहाँ पे खाली ऑड नंबर चाहिए, मेरे को ओके। अगर खाली ऑड नंबर चाहिए और ऑड नंबर के बेसिस में कुछ ऑपरेशन करना चाहता हूं, या कोई भी केसेस में ऐसा सोच लो कि मेरे को किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उस चीज को कुछ ऑपरेशन जो मैं करता रहा हूं जो कि फॉर लूप के अंदर है, सोचो यहाँ पे प्रिंट आई कर रहा हूं, वैसे कुछ दूसरे कंडीशन भी हो सकते हैं। जैसे अगर अगर मेरा डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी है, तो उस केस में मेरे को एंट्री नहीं करवाना है, बट बाकी सारे केस में एंट्री करवाना है। सोचो एडमिशन का एक मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जो एडमिशन एप्लीकेशन में अगर मेरा आईटी का सीट फिलअप हो गया है, बट मेरा जो भी इक्वेशन सिस्टम है उस केस में मैं हैंडल नहीं कर सकता नीचे जाके कि मेरे को आईटी में नहीं करना है। कोई अगर आईटी एंटर करता है तो मैं उसको ब्लॉक कैसे करूंगा? अगर कोई लूप में एंट्री कर रहा है, लूप में कोई एक सोचो कि कोई एक फाइल दे दिया और फाइल से एंट्री कर रहा है पूरा स्टूडेंट का डाटा, बट आईटी के लिए मेरे को कोई भी एंट्री नहीं चाहिए अभी। आईटी के लिए जो भी मेरे का एप्लीकेशन है उसको स्किप करना है, ठीक है। उस केस में वो फाइल से लोड मैं कैसे करूंगा इंटरनली में अगर कर रहा हूं? तो मैं इस टाइप का लॉजिक लगा दूंगा, अगर इफ डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी देन कंटिन्यू। तो उसमें क्या होगा, उसी डिपार्टमेंट के लिए जो भी आईटी डिपार्टमेंट के लिए जो भी आएगा वो एंट्री नहीं होगा, एप्लीकेशन स्किप हो जाएगा, और बाकी सारे के जैसे एंट्री होना है वैसे एंट्री हो जाएंगे। समझ में आया सिचुएशन? क्योंकि मैं यूजर को जो वैल्यू एप्लीकेशन दे रहा है उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि बंदे तो एप्लीकेशन डालते रह रहे हैं, क्योंकि मैं वहां पे सर। फ्रंट एंड में चेंज नहीं किया, बट बैक एंड में मैंने हैंडल कर दिया उसको प्रोसेसिंग के टाइम। सिमिलरली सोचो कोई भी रिसोर्ट बुकिंग वगैरह करते हैं, सोचो कि रिसोर्ट बुकिंग कर रहे हो और रिसोर्ट फुल हो गया, और एक 4 नंबर का रिसोर्ट जो है वो सोचो किसी बड़े बड़े गेस्ट को दे दिया, बट फ्रंट एंड में मैं तो 0 to 5 तक दिखा रहा हूँ, सोचो उसको हैंडल नहीं किया है फ्रंट एंड वालों ने। तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर तुम देते दे रहे हो जो भी दे रहे हो दो, अगर 4 नंबर का आएगा तो मैं करूंगा नहीं, तो मैं लूप घुमाता रहूंगा, अगर 4 नंबर का आएगा तो रिसोर्ट बुकिंग हो गया है।
महीने के लिए बुक हो गया है, तो मैं उसको कंटिन्यू करके स्किप कर दूंगा। ए एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट ये जनरल केसेस में ऐसे होते नहीं है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूं। उस केस में जस्ट स्किप कर दिया। जो चीज को मेरे को नहीं चाहिए, जिस केस में अगर मैच कर रहा है, उसको मैं ए बार स्किप करूंगा, बट मेरे को लूप एग्जिट भी नहीं करना है। ब्रेक में क्या करते थे, अगर तुम ब्रेक में देखो जाओगे, सर। ब्रेक, हाँ ब्रेक में जब करते हैं तो यस। इसके आगे चलेगा ही नहीं। वन यस। टू फोर, 0 to 4 तक गया, 0 1 2 3 4, देन उसके आगे चलेगा ही नहीं, राइट? क्योंकि मेरे को यस वहां सर। से आगे बढ़ाना ही नहीं है, जबकि 10 तक है। तब मैं ब्रेक यूज करता हूं जब मेरे को आगे बढ़ाना है, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन को नहीं बढ़ाना है, तो उसके जगह कंटिन्यू करता हूं। समझ में आया? यस सर, पूरा समझ में आया। चलो, अभी प्रिंस समझ में आया? और कुछ डाउट? यस सर। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जहां पर हमको मतलब लूप में लगाना है, कंटिन्यू रखना लूप कंडीशंस को, बट उस कंडीशन को आउटपुट के रूप में नहीं लेना, उसको इग्नोर करना एग्जैक्टली है। exactly. वो कंडीशन का जो जहां पे कंडीशन मैच करेगा, उसका जो उस टाइम में जो इटरेशन है, वो इटरेशन को स्किप कर देने का। यस सर। समझ में है? अगर सोचो कि यस सर। ये कंडीशन में मेरे को इवन नंबर मैच हो रहा है, आई जहां पे इवन नंबर है उसको मैं स्किप कर दिया, यस सर। ये वाले लूप से नहीं। ये वाला तो लूप घूम रहा है 0 to 9 तक, ये ऊपर वाला, राइट? जहां पे इवन नंबर है, वहां पे ये वाला स्किप कर दिया, ये वाला लूप को स्किप कर दिया। समझ में आया? अभी फिर से। यस सर। यस यस सर। सर, ये तो है। चलो, दूसरा वाला, तीसरा वाला चीज क्या है? पास। जनरली क्या करते हैं, पास हम लोग तभी यूज करते हैं जब भी हम लोग को फ्यूचर में कोड लिखना है और अभी हम लोग इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते। इट्स काइंड ऑफ प्लेस होल्डर, इट डजंट डू एनीथिंग। ओके, सोचो मेरे को कल को जाके कोई इंप्लीमेंट करना है, कोई भी फंक्शनैलिटी, और मेरे को अभी कुछ नहीं करना है। अभी मैं क्या करूंगा, सोचो पास। यहां पे कुछ फंक्शन लिख रहा हूं, डेफ इविन A, B, एंड देन पास लिख दिया। और सोचो मेरे को इवन कॉल करना है, 2, 3। तो इस केस में क्या होगा? देखो, एग्जिट कर गया। जबकि जनरली कोई भी फंक्शनलिटी में मैं कुछ भी पास करता हूं, तो यहां पे मेरे को कुछ कांड करना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है, राइट? कि यस ए सर। मॉड 2 = 0 है, कि ये सम एडिशन करना है, ये एक्चुअली राइट नेम है, जैसे भी कुछ भी नंबर बोलो, नंबर इवन में सोचो नंबर पार करो, कुछ भी पार करो। सोचो यहाँ पे 5 पार कर दिया, तो ये फेल होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे कुछ भी हैंडल नहीं करना चाहता। दिस इज ए प्लेस होल्डर, इट डजेंट डू एनीथिंग। पास मीन्स इट विल जस्ट बी ए देयर, इट विल नॉट डू एनीथिंग, ये कुछ करेगा ही नहीं, बस बैठा रहेगा, और इसके बेसिस में मैं सारा का सारा ऑपरेशन स्किप कर सकता हूँ। अगर सोचो ये चीज को मैं कहीं पे एक बड़ा फंक्शनलिटी लिख रहा हूं, और ये चीज को मेरे को अभी पास करवाने, मेरे को समझ में आ रहा है कि ओके ये 10 फंक्शन लगेंगे, इसमें से अभी अभी इटरेशन में मैं 5 फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा, और 10 15 दिन के बाद जब मेरा ये 5 फंक्शन कंप्लीट हो जाए, देन मैं नेक्स्ट 5 फंक्शन कंप्लीट करूंगा। बट जब मैं आर्किटेक्टिंग कर रहा हूं इन द स्टार्टिंग पेज, मैंने 10 फंक्शन क्या क्या होंगे फाइनलाइज कर दिया, तो उस केसेस में मैं क्या करूंगा, इसे 10 फंक्शन लिख दूंगा, 10 फंक्शन का नाम लिख दूंगा, क्या क्या आर्ग्यूमेंट होगा लिख दूंगा। बट मैं इवन मैं इंप्लीमेंट करने के टाइम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, उसको कॉल भी कर सकता हूँ, बट उसको जस्ट पास करके छोड़ दूंगा। सो क्या होगा, मेरा 5 फंक्शन रेडी है, जब 5 फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में 5 फंक्शन में इसका इंप्लीमेंट में जाऊंगा। उसके बाद में इसमें को हटा के एक्चुअल जो इफ नाम mod 2 = 0, देन प्रिंट ये, और इसको अगर एल्स प्रिंट नॉट इवन। ओके, समझ में आ रहा है? अभी इसको सर। मैंने लिखा, अगर सोचो इसके बाद मेरे को ऑड करना था, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑड इंप्लीमेंट नहीं किया, ये पहले 5 दिन में करूंगा, और ऑड को इंप्लीमेंट नहीं करके मैंने यहाँ पे बस लिख दिया पास। और यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करने के टाइम बट का कॉल कर सकता हूँ ऑड 7 लेट से, और इवन 22, समथिंग लाइक दिस। ओके, जब भी मैं कॉल करूंगा क्या होगा, सॉरी,
पाइथन देखो, इवन का प्रिंट हुआ बट ऑड का स्किप हो गया। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो ये तीन हो गए तुम्हारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ओके, क्या क्या हो गए? एक हो गया ब्रेक, जो कि लूप को ब्रेक करेगा कहीं पे भी, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। कंटिन्यू, जिसमें वो जब भी कंडीशन मैच करेगा उसी को स्किप करेगा और बाकी के इटरेशन को फिर से चालू रखेगा। और पास इज समथिंग कॉल्ड एज ए प्लेस होल्डर, जो कि खाली प्लेस होल्डर है। क्लियर सब लोग? और किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर कैन यू प्लीज सर एक्सप्लेन द सेकेंड पॉइंट ऑफ लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट? ओके, ये हाँ हाँ, बोलो। कौन बोल रहा था? हेलो, am I audible guys? Yes, sir, you are audible. हाँ, किसने संग्राम को लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट तुमको समझ में नहीं आया क्या संग्राम? फिर से बोलना है। संगम, आर यू देयर? हेलो। ओके, उसने कुछ तो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के बारे में पूछा है, बोला कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द सेकेंड पॉइंट ऑफ लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट? व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट मीन? आई डिडंट अंडरस्टैंड एक्चुअली। सर आपने लिखे लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर इस शिफ्ट। ओके, वो वाला क्या, कैसे वो कैलकुलेट कैसे होता है, वो वाला? यस सर। ठीक है, यस सर। अभी फिर से समझा देता हूँ ये वाला। ठीक है, देखो, फाइव फाइव को हम लोग बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था। बाइनरी हम लोग का क्या होता है? 2 to the 0, then 2 to the 1, then 2 to the 2, then 2 to the 3, something like this, then 2 to the 4, something like this, right? और इसमें खाली 0 और 1 रहते हैं। तो 5 को मैं अगर बाइनरी में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? हेलो। 101। यस, 1 0 1, क्योंकि 2 to the 0 इक्वल टू कितना है? 1 है। टू टू यस। द वन इक्वल टू कितना है? 2 है। 2 to the 2 इक्वल टू 4, 2 to the 3 इक्वल टू 8 एंड 16, राइट? अगर मैं इसको डिवीजन करूं, ऐसे होगा, देखो। तो यहाँ पे 1 है, 1 into 4 कितना हुआ? 4। एंड यहाँ पे 1 into 1, 1, तो 4 + 1 मिला के 5 हो गया। तो इसलिए मैं 5 को ऐसे लिखता हूँ। अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट 1 बोलता हूँ तो क्या होगा? 1 0 1 का 1 0 1 हो गया। और ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट मतलब लेफ्ट में चला गया, तो मैं यहाँ पे राइट में एक 0 ऐड करूंगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। यस सर। जब भी लेफ्ट शिफ्ट होता है, मेरा जो भी नंबर होता है वो लेफ्ट चला जाता है, उसके राइट में एक 0 आता है। तो इस केस में क्या होगा? सेम यहाँ पे 1 0 1 0 यहाँ पे लिखूंगा। देखो, ये लंबा कर देता हूँ थोड़ा और, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 0 1 0, कैसे लिखूंगा? यहाँ पे आएगा 1 0 1 0। अगेन 1 into 0 कितना हुआ? 0। 2 into 1 कितना हो गया? 2। 4 into 0 कितना हो गया? 4, सॉरी 0। 8 into 1 कितना हो गया? 8। चारों को मिलाऊंगा तो कितना होगा? 10। अभी समझ में आया कैसे 10 10 आया? यस सर। क्लियर? यस सर। सेम चीज इसमें होगा, यहाँ पे बस राइट शिफ्ट हो जाएगा। क्या था? 1 0 1। अभी अभी इसको मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूं, तो राइट शिफ्ट कर रहा हूं तो ये कट जाएगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 0 1 0 हो गया, राइट? सो 0 क्या हो गया? 2 to the 0। देन 1 क्या हो गया? 2 to the 1। 0 क्या हो गया? 2 to the 2। अभी 2 to the 0, 2 into 0, 0 का कुछ वैल्यू नहीं है तो 0 हो गया। प्लस 2 to the 1 इक्वल टू 2, 2 into 1 इक्वल टू 2, प्लस 2 to the 0 1, 1 into 0 इक्वल टू 0। क्या हो गया? 2। आया आंसर? यस सर। क्लियर अभी? यस सर। चलो, और किसी को डाउट है कुछ? आगे बढ़े। यस। अभी हम लोग चलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। किसने पूछा था रेगुलर एक्सप्रेशन कल? सर मैंने मेघना, राइट? पूछा था। यस सर। मे ओके मेघना।
तुम्हारे लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का स्लाइड बनाना पड़ा मेरे को। चलो बढ़िया है। ठीक है, अभी रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? बोलो मेघना, तुमको क्योंकि तुमने पूछा है तो तुमसे ही स्टार्ट करेंगे। होता क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन? पर सर यहाँ पे जो मुझे लिखा हुआ है सिर्फ भूल जाओ, तुम जो जानते हो बोलो। सर मुझे सिर्फ पता है कि पैटर्न मैचिंग के लिए ही होता है, पर और कुछ नहीं पता। खाली पैटर्न मैचिंग के लिए होता है? हाँ, मैंने सुना है बस। ओके, बहुत सारी चीजों के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है, ठीक है। बट मोस्टली देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कौन सी चीजों के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। ये एक बेसिकली ये पैटर्न मैचिंग एक्सप्रेशन ही होता है। बट ये पैटर्न मैचिंग एक्सप्रेशन किस किस के लिए यूज करो? पैटर्न मैचिंग कहाँ पे करोगे? किस किस चीज के लिए? सोचो, एक पैराग्राफ है, या कोई पीडीएफ है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, या कोई सेटअप थिंग्स है, सेटअप स्ट्रिंग्स है। तो उस केस में कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का फॉर्मेट, या कोई पर्टिकुलरली कैरेक्टर्स, कोई पर्टिकुलर डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स, ऐसा टाइप का कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग हो गया जिसका डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी है, डिफरेंट काइंड ऑफ तरीका है, वो सारे चीज को हम लोग को अगर मैच करके उसको निकाल कर हम लोग को लिस्ट डाउन करना होता है, जहां पे सर्च हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, वैलिडेशन हो गया, रिप्लेस हो गया, ये सारा चीज रेजेक्ट के थ्रू पॉसिबल है। रेजेक्ट स्टार्ट फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड? यस सर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? जब भी मेरे को कोई भी चीज को वैलिडेट करना होता है अगेंस्ट ए इनपुट वैल्यू। सोचो, मैंने एक ईमेल आईडी डाल दिया, सबके लिए पूछ बोल रहा हूं, एक ईमेल आईडी डाल दिया, और वो ईमेल आईडी को मेरे को वैलिड करना है कि इट इज ए ईमेल आईडी वैलिड है नहीं, क्योंकि फ्रंट एंड से अगर कोई यूजर मेरे को कुछ भी एंट्री डालता है, दैट विल बी कमिंग टू माय बैकएंड। बट हाउ विल इंश्योर कि ये जो पहला बंदा आगे से जो डाल रहा है ईमेल आईडी, वो एक्चुअली सही डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? मेरे को कहीं पे तो वैलिडेट करना पड़ेगा ना। तो वो चीज मैं रेजेक्ट के थ्रू करता हूं, रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग के थ्रू। सिमिलरली फोन नंबर हो गया, या तुम लोग अगर बोलते होगे, अगर तुम लोग देखे होगे, मैं जब भी कोई पासवर्ड हम लोग डालते हैं वो बोलता है, ओके यू हैव टू एंटर एटलीस्ट वन कैपिटल नंबर, यू हैव टू एंटर एटलीस्ट वन नंबर इनसाइड इट, यू हैव टू एटलीस्ट एंटर सम स्पेशल कैरेक्टर आउट ऑफ इट, राइट? बताता है कि नहीं बताता है? ये सर बताता है। हाँ, तो उसी के लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि हम लोग चेक करके बोलें कि भाई ये फॉर्मेट में आएगा तो हम लोग एक्सेस करने देंगे या एंट्री करने देंगे, नहीं तो हम लोग एंट्री करने नहीं देंगे। एग्री सब लोग? यस सर। चलो, मतलब सर क्या क्या एंट्री नहीं करने देगा वो? प्रिंस, तुम लॉगिन करते हो सुबह सिस्टम पे, या तुम्हारा कोई पासवर्ड एक्सपायरी हो जाता है, राइट? तुम उसको पासवर्ड जब सेट करने जाते हो, वो क्या बोलता है? तुम जो भी डालोगे वो ले लेता है क्या? नहीं, उसमें सर वो क्राइटेरिया होता है कि हाँ लास्ट के 5 या 10 पासवर्ड मैच नहीं करना चाहिए। और क्या होता है? ये तो एक कैरेक्टर हो गया। कभी देखा है एटलीस्ट वन कैरेक्टर शुड यस बी सर। कैपिटल एक लेटर? कैपिटल हाँ हो हाँ, यस सकता है, यस इट यस। एक शुड, तो स्पेशल कैरेक्टर होना है, 8 कैरेक्टर तक एग्जैक्टली, लिमिट है। एग्जैक्टली। ये सारे चीज जो होता है हम लोग का पासवर्ड का, ये सारा जो लॉजिक है हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ही चेक करते हैं, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए पाइथन हैज वन लाइब्रेरी, इनबिल्ट लाइब्रेरी, जिसका नाम है आरई। आरई लाइब्रेरी, आरई स्टार्ट फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। मैंने कल बताया था, थोड़ा हिंट दिया था, राइट? तुम पढ़ के आ जाओगे तो तुमको इजी होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो कैसे सब यूज किया है, क्या दिया करता है, वैलिडेट डेटा करता है, पैटर्न एक्सट्रैक्ट करना है तो करता है, रिप्लेस टेक्स्ट करना है तो करना है, स्प्लिट टेक्स्ट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो मैचेस, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। ये आरई मॉड्यूल के थ्रू आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे 3 4 एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, बट दीज आर वेरी, अगर तुमको देखना है तो मैं एक के बाद एक समझा देता हूँ। देखो, एक्स्ट्रा ऑल नंबर्स करते हो तो ऐसे करके कर सकते हो। जैसे मेरे को अगर नंबर फाइंड आउट करना है, तो स्लैश डी मतलब क्या होता है? डिजिट फाइंड आउट करो, ठीक है, डिजिट प्लस।
तो प्लस इसका इसका एक सेंटेंस जानना है ना तुमको, एक चीट शीट में लास्ट में दे दूंगा अगर होता है तो, ये वाला नहीं तो ये करके देख लेना। एक मिनट, स्क्रीनशॉट दे लेके रख लेना, अगर होता है तो तुम लोग तो जनरली करते ही हो, मेरे को पता है। ठीक है, तो देखो प्लस मतलब मैच वन और मोर कर दी, ये वाला तुमको यूज होगा बहुत जगह पे अगर तुम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हो। तो क्या होता है, जब भी तुम कोई भी चीज मैच करते हो मेरे को देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या चीजें रहती है, उसके बेसिस में मैं उसको वैलिडेट करता हूँ। तो पैटर्न में अगर देखोगे यहाँ पे अगर सोचोगे तो क्या लिखा हुआ है, स्लैश डी प्लस। स्लैश डी प्लस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी देखो समझने के लिए। स्लैश डी मतलब मैच ए डिजिट, ओके। प्लस मतलब क्या हो गया, मैच वन और मोर ऑकरेंसेस पाइथन में। ठीक है, तो स्लैश डी प्लस मतलब मैच ए डिजिट एंड देन मैच वन और मोर ऑकरेंसेस। तुम अगर यहाँ पे जाओगे देखो ये क्या किया, ये स्ट्रिंग में घुमाया और फाइंड ऑल करके स्लैश डी प्लस डाल दिया टेक्स्ट में, ये टेक्स्ट पास किया। तो उसमें क्या हो गया, जहां पे सारे डिजिट है और एक से भी ज्यादा डिजिट है उसको पकड़ के लेके आओ। तो यहाँ पे उसको 1 2 3 मिला, 4 5 मिला और 9 मिला, वो तीनों को लेके आ गया। इसको अगर तुम रन करके देखना चाहोगे तो यू कैन रन इट। सोचो कहाँ पे, एक जगह पे ये कर लेते हैं, एक नया प्रोग्राम लिख देता हूँ जिसका नाम देते हैं हम लोग regex run.py। और यहाँ पे मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं करूंगा import आरी। ओके, ठीक है। यस सर। तो आउटपुट ये आएगा, मैं तुमको बता दे रहा हूँ पहले, हम लोग एक बार रन कर देंगे। Reject run। कुछ गड़बड़ किया क्या मैं? वही थोड़ा सा। अच्छा। इन्वर्टेड कॉम ओ, अच्छा इन्वर्टेड। ऐसा तो प्रिंट तो आता नहीं है। एक मिनट, जनरली रिटर्न तो करता ही है, इसको शायद वेरिएबल देके सेव करना पड़ेगा क्या। एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसके रिटर्न टाइप क्या है। ओके, लिस्ट ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसको एक वेरिएबल में सेट कर देते हैं, ऑल नम इक्वल टू और प्रिंट ऑल नम। देखो हो गया। जैसे। तो इसको ये एक्चुअली क्या करता है यहाँ पे, इसीलिए मैं देखा, देखो दिख रहा है लिस्ट रिटर्न करता है। ये कभी कभी देखना पड़ता है क्योंकि हम लोग भी याद नहीं रख सकते सारी चीज, राइट। मैं तो तुम्हारे सामने ही कोडिंग कर रहा हूँ तो मेरे को क्या याद रहेगा। ठीक है, तो ये लिस्ट रिटर्न करता है, यहाँ पे देखो लिस्ट ये जो है आउटपुट हुई है, देखो आया। यस सर। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, स्लैश डी मतलब हम लोग सारे नंबर देखे, और प्लस मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर, एक हो एक से ज्यादा कैरेक्टर हो सब कुछ पकड़ के लेके आओ। यहाँ पे अगर सोचो मैं यहाँ पे और एक ला दिया 4 6 5 6 4, तो मैं अगर रन ये भी करता आ तो जाएगा। ये भी आ जाएगा, आ जाएगा। राइट। यस सर। तो 8 डाल दिया, ये भी आ जाएगा। राइट। तो ये सारा चीज वैसे ही होता है, ठीक है। ये एक है रिजेक्शन का एक चीज हो गया, ठीक है। अभी दूसरा चीज होता है, दूसरा वेरिएबल क्या है, और एक रन करके देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल वर्ड्स, इसका मतलब क्या है बताओ। सॉरी, सर कैरेक्टर ले लेगा, कैरेक्टर्स को लिस्ट आउट कर देगा। अच्छा। तो क्या करेगा, यहाँ पे मैं कब डालूंगा उसको, ऑल सर वर्ड्स। हाय और हेलो आएगा। हायर हेलो आएगा, गुड। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ऑल वर्ड्स करता हूँ, हायर हेलो आएगा। क्यों आएगा बताओ, अभी कोई समझा सकता है मेरे को क्या होगा, सर क्या हुआ बिकॉज यहाँ वहाँ पे। पे वर्ड्स है ना। तो इसने वर्ड। क्या किया, हम लोग बोल रहे हैं कि कैपिटल से है या स्मॉल में है, कुछ भी है, मोर देन
वन कैरेक्टर है, तुम उसको हम्म, पकड़ के लेके आओ। ठीक है, यस सर। वन और मोर देन वन कैरेक्टर जो भी है उसको लेके आओ। तो प्लस का मतलब समझ में आया। ए टू जेड में हम लोग पैटर्न देते हैं कि कौन सा वाला चाहिए। समझ में आया कैसे आ रहा है। यस सर। सिमिलरली अगर मैं ये तीसरे में जाता हूं, सोचो। हम्म, क्या तू टेक्स्ट टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे क्या किया उसने, मेरे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था विथ, यहां से यहां तक ये वाला कैरेक्टर क्या होता है, स्टार्टिंग कैरेक्टर था, जहां पे तुम स्टार्टिंग करते हो उसको स्टार्टिंग कैरेक्टर को इससे बोलते हैं। उसने क्या बोला कि स्टार्टिंग से लेके जो भी कैरेक्टर में कैपिटल A to Z है, स्मॉल A to Z है, या 0 to 9 है, उतना छोड़ के बाकी जो भी हैं उसको तुम क्या करो, बाउंडिंग बॉक्स के अंदर में जीरो में, मतलब कुछ भी बिना ये करके उसको रख दो। जो सर यहाँ पे उसने क्या किया, ABC@123#XY क्वेश्चन मार्क, ये सारे चीज जो अल्फा न्यूमेरिक थे वो सारे को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तुमने जो रिमूव स्पेशल कैरेक्टर भी तुम इसको आरई मॉड्यूल रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया, नंबर भी फाइंड आउट कर पाए, वर्ड भी फाइंड आउट कर पाए, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी फाइंड आउट कर पाए, इवन सब्स्टिट्यूट भी कर पाए। जो भी करना है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट, सबको समझ में आ रहा है। सब्स्टिट्यूट वाला सर समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे उसने @, को क्या किया, ये जो @, को कहीं भी निकाल के आउटपुट अल्टरनेट। दिया क्या उसने, देखो हटा दिया उसको, हाँ, सब्स्टिट्यूट हटा कर दी दिया। सर। राइट, आज सब मॉड्यूल क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करता है। यहाँ पे अगर तुम इसके ऊपर अभी अभी आदित्य बोलेगा ये सब मॉड्यूल तो मैं यहीं पे लिख सकता था, आदित्य क्या बोलते हो, यस सर। सब मॉड्यूल लिख दोगे ना। यस। हाँ लिख दोगे। नो 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 नो। सुन रहे हो ना अच्छे से। यस सर, तो यस सर। इसीलिए हम लोग अभी जब याद आया, अभी हम जो कैल कप स्विच करके डॉट ऐड करके कर रहे थे, अभी सोचो कि यहाँ पे आरी डॉट सब तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो बैठ के यहाँ पे, कितने दिन लगेगा। यस सर, तो बॉट। इसीलिए मॉड्यूलराइजेशन इज इंपॉर्टेंट आल्सो। ओके, ओके सर। ठीक है। सब्स्टिट्यूट क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दिया पूरा हुआ। तो इसने क्या बोला देखो यहाँ पे, बोला कि जो भी हम लोग को मिला डेटा वो को उस चीज को मैं हटा रहा हूँ। Return the string obtained by replacing the leftmost non-overlapping occurrences of the pattern in string by the replacement REPL। रिप्लेसमेंट क्या करना है उसको, लेफ्ट मोस्ट से, ये REPL क्या है, नो वैल्यू है, मतलब स्पेस भी नो नहीं है, वैल्यू। एम्प्टी वैल्यू है। राइट, उसके साथ मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है। और ये स्ट्रिंग इधर भी कॉलेबल हो सकता है, अगर स्ट्रिंग ब्लैक स्लैश इनिट इज प्रोसेस्ड, इफ इट इज ए कॉलेबल, यहाँ पे बैक स्लैश भी हैंडल हो सकता है। उसको कैसे हैंडल करना हो, थोड़ा थोड़ा जितना तुम एक्सपेरिमेंट करोगे उतना समझ में आएगा। ठीक है। और ये पूरा का पूरा रिटर्न करता है रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो इसलिए हम लोग जब इसको करते हैं सब्स्टिट्यूट, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो ABC 1 2 3 और XY को रिटर्न कर दिया, बिकॉज उसका ऐसा ही वैसा। अगर सोचो, बट सर हमने यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर के बारे में मेंशन ही नहीं किया। हाँ रिमूव स्पेशल कैरेक्टर हम लोग दिए, इतना अलाउड है। हमने क्या दिया, इतना अलाउड है हम लोगों को। अच्छा अच्छा, यहाँ पर अंदर जो कंडीशन लिखी है वो अलाउड वाली, हाँ ठीक है अलाउड ठीक है। वाले, इसके अलावा जो भी है बाकी हटा दो, ठीक है। हाँ। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग उतना बोले, उसको छोड़ के बाकी जितना हटा दो। ठीक है। यस सर। ये सारे फंक्शन का अलग है, तुमको एक बार जब भी ये फंक्शन सब यूज करते हो ना, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि इसका जो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। सर ये कैसे आता है, कोई कौन सी बटन दबानी पड़ती है, ये आ जाता है डिस्क्रिप्शन। खाली उसके ऊपर ऐसे रखोगे तो आ जाएगा, माउस रखोगे तो आ जाएगा। बटन कुछ दबानी नहीं पड़ता। अगर बटन दबानी है तो उसके ऊपर कंट्रोल करके क्लिक करोगे तो उसके अंदर जाएगा, वो डिटेल्स में पढ़ सकते हो। बट बेटर वहीं पे ही कर लो, सो दैट तुमको समझने में आसानी होगी। ऐसे पढ़ोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। और ये तुम अपने प्रोग्राम के लिए भी कर सकते हो इफ यू वांट। कैलकप्स में अगर जाता हूं और सोचो कि ये जनरल कैलकप्स में मैंने आड़ लिखा, और यहाँ पे मैंने ऐसे करके आड़ टू नंबर्स इनपुट
ए बी आउटपुट सम से इंटीजर। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अगर तुम अपने प्रोग्राम में कैलकुलेटर प्रोग्राम के जाके आड़ के ऊपर ऐसे रखोगे ना, देखो दिख रहा है? यस सर, ऐड टू नंबर्स इनपुट ए और बी, सम आउटपुट होता है सम ऑफ इंटीजर। समझ में आ रहा है ना? यस तो सर। ये आउटपुट तुम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे जो भी लिख सकते हो। अगर सोचो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, रिटेन बाय मिश्रा। अगर तुम मल्टीप्लाई में जाते हो, ये देखो दिख रहा? यस दिख सर। रहा कि नहीं दिख रहा? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए डॉक्यूमेंटेशन। तो वहां पे ये चीज भी तुम फंक्शन का एक चीज यूज कर सकते हो। मैं ये बताना छूट गया था। तो ये वाला जनरली एडवांस फंक्शन जो लिखते हैं ना एडवांस प्रोग्रामर्स, जो हम लोग एक्चुअली जब भी इंडस्ट्रियल यूज केस में लिखते हैं, मैक्सिमम को बहुत लोग नहीं लिखते, बट इट इज बेटर टू राइट समथिंग लाइक दिस। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो चलो, रेजेक्ट रन में थे। रेजेक्ट रन में ये दो तीन किए। अभी देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ वैलिडेट इंडियन फोन नंबर कैसे होता है। ठीक है, ये तीन समझ में आया? क्लियर तीनों को, सबको? यस अभी सर। इंडियन फोन नंबर कैसे वैलिडेट करते हैं, ये देखो यहाँ पे देखो। ये चीज मैंने पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दिया है, देख लो एक बार। तो अब लोग का क्या पहले होता क्या है, यहाँ पे देखो इंडियन नंबर का फॉर्मेट क्या होता है? 6 से 10, चालू होगा, ये तो 9 से चालू होगा, 6 से दस प्लस 9। नाइन डिजिट। वाला। यस, नाइन वन। यस 10 डिजिट का नंबर होता प्लस है। ठीक है, पहला नंबर आइदर 6, नहीं तो 7, नहीं तो 8 होता है, नहीं तो 9 होता है। पहले ओनली 9 होता था, उसके बाद सारे जब चले गए तो 8 आया, उसके बाद 7 आया, अभी 6 चल रहा है, राइट? 5 तक गया नहीं, अभी 6 चल रहा है, 6 वाला, राइट? इंडियन मोबाइल नंबर स्टार्ट विथ 6 to 9, स्टार्टिंग नंबर। तो हम लोग ने उसको क्या लिखा? ये देखो, ये जो कैरेट सिंबल होता है, टोपी वाला सिंबल, ये होता है हमेशा स्टार्ट किया कि नहीं। देखो यहाँ पे देखो, स्टार्ट किया। उसके बाद पहला डिजिट क्या रखा? 6 to 9, देखा? दिख यस रहा सर। है? उसके यस। बाद उसने लिखा /D9। व्हाट डज इट मीन? ये जो /D होता है, ये जो /D मतलब मैंने क्या बताया था? एनी डिजिट बिटवीन 0 to, नाइन। कैसे होता है यहां पे बताया था, याद है? /D, अगर तुम यस अच्छे से सर। सुन रहे होगे तो कैप्चर कर पाओगे इजीली। /D यहां पे बताया था 0 to 9। समझ में आया अभी? हम्म। और उसका कितना डिजिट लेगा? 9 डिजिट लेगा। वाई 9 डिजिट? हम लोग को तो 10 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि ये जो पहला वाला 6 to 9 हम लोग ने लिखा था, यहां पे एक डिजिट लिया था, यस सर। और ये /D9 में और 9 डिजिट लिए, टोटल कितना डिजिट हो गए? टेन 10। डिजिट और ये डॉलर मतलब एंड। ओके, यस यस सर। गैप मतलब स्टार्ट, डॉलर मतलब एंड, उसके बीच में जो रहा मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन। 6 to 9 मतलब मेरा 6 7 8 9 से स्टार्ट होगा, जहां पे एक डिजिट रहेगा यहाँ पे कुछ, क्योंकि कैलकुलेट मैंने नहीं किया, कुछ बोला नहीं कि कितना डिजिट रहेगा, तो एक डिजिट ऑटोमेटिकली लेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं वाला /D करो, जो कि 0 to 9 के बीच में कोई भी डिजिट ले सकता है, और उसका इंटरनल क्या रखेगा? 9, उसका मतलब 9 डिजिट ही जाएगा। और ये टोटल डिजिट कितना हुआ? 9 यहाँ पे, ये वाले पार्ट में, और ये वाले पार्ट में 1। तो 9 + 1 = 10 डिजिट नंबर। क्लियर सबको? रेगुलर एक्सप्रेशन फोन नंबर कैसे चेक करते हैं? यस सर। चलो एक क्लियर? बार एग्जाम्पल तरीके से अगर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल तरीका मतलब कौन सा एग्जाम्पल चाहिए तुमको? बता, ये वाला रन करके देख लेंगे क्या? हाँ 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 सर। ठीक। सोचो, यहाँ पर डालेंगे वैलिडेट ओ इंडियन फोन नंबर और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये पैटर्न मैंने डाल दिया, और मैंने यहाँ पे चेक करूंगा, कॉपी यहीं से ही कर लेता हूँ, मैंने लिखा हुआ है ना anyway। तुम लोग के लिए सबको मेरे को प्रोग्रामिंग करना पड़ रहा है, पता है? ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैं ही प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तुम लोग तो कोई करके देते नहीं हो।
मैं खाली तुमको डंप दे रहा हूँ, ऐसा मेरे को लग रहा है, जो कि गलत है। देखो तुम्हारा मर्जी, अभी मैं क्या बताऊं। ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूंगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सोचो, वैलिड मोबाइल नंबर क्या होगा यहाँ पे। अगर मैं डालता हूं 5432786701, कितना डिजिट है? 10 डिजिट है। ये क्या बोलेगा आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा? सर रॉन्ग, कुछ नहीं आएगा। फॉल्स आएगा। कुछ फॉल्स। नहीं आएगा। फॉल्स। यस सर, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम 5। 5। ओके। कुछ भी नहीं आएगा। यस सर, क्या आया? फॉल्स आया। क्योंकि मैंने बुल में कन्वर्ट किया हुआ है, दिख रहा है। यस सर। तो इसीलिए अगर ये चीज को मैं करूंगा, मैं ऐड करता करता चल रहा हूं, हम्म। और यहां पे मैंने इसको 6 कर दिया, क्या होगा? सर ऑब्वियसली ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि यस छह सर, सात आठ नौ बिकॉज से मेरा 6 स्टार्ट हो रहा 6 है। 7 8 से। यस सर। हम्म। सोचो, ये चीज को मैं क्या करूंगा, अभी और एक डिजिट ऐड कर दूंगा, 0। क्या होगा? तो आप पे फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स आएगा। फॉल्स। क्यों? इसका डिजिट 11 डिजिट हो ज्यादा गया। हो गया। 11। यस सर। ओके। अगर सोचो इसमें 9 कर दिया और इसको हटा दिया, सर फिर भी फॉल्स आएगा। क्यों? फॉल्स आएगा। नॉट डिजिट बिकॉज आ गया ना। नंबर है इसमें नॉट मैच्ड। गुड। हम्म। नंबर ऑफ तो हो नंबर्स गया। नॉट मैच्ड। सोचो तो कम हुई। 0 कर दिया, क्या होगा? सो फिर भी फॉल्स ही रॉन्ग आएगा। आएगा सर। एग्जैक्टली exactly. अगर Yes. सोचो क्या फॉल्स आएगा? आएगा। तो फिर भी फॉल्स। क्योंकि हम लोग ने स्पेस। प्लस के लिए कुछ लिखा ही नहीं। क्या यस है सर। नहीं। राइट। यस अगर सर। सोचो, सॉरी, क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स ट्रू आ आएगा। जाएगा। सॉरी सर। फॉल्स हम आएगा क्योंकि यहाँ यस पे सर, यस यहाँ स्पेसेस पे भी अलाउड गैप में नहीं है। सर, अलाउड नहीं नहीं है। नहीं। यस सर। क्या आएगा? फॉल्स। क्योंकि हम लोग स्पेसेस अलाउड नहीं किए हैं। यस सर। ठीक है। यस यस सर। सर। तो ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल मैंने दे दिए। अगर सोचो, बट अगर सोचो मैं अगर कुछ चेंजेस करता हूं, जैसे मोबाइल नंबर, जनरली मैं इंटरनेशनल का भी चेक कर सकता हूं। अगर सोचो ऐसा मेरा नंबर है, माइन +91, देन 9876543210, दिस इज शुड बी ए वैलिड नंबर, राइट? यस सर। यस सर। बट हमने उसको हैंडल नहीं किया इसके तरीके। इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए और एक भी एग्जांपल यहाँ पे नीचे देके लिखा हुआ है, ये पैटर्न के दिख रहा है। यस तो सर। ये पैटर्न तुम ऐड कर सकते हो, ये पैटर्न भी समझा देता हूँ तुम लोगों को। देखो, यहाँ पे हम लोग कितना ऐड किए थे, ये समझ में सबको आया था इतना। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ तुमको, पैटर्न 1। 1 मिनट। इसमें मेन जो है सर, हमारा जो हमने लिस्ट बताया, मतलब वो टेबल टाइप करिए ना, किससे हम्म। क्या होता है, अभी वही कर देखो रहे ये वाला पार्ट सेम है, राइट? हैं। यस सर। ये वाला पार्ट सेम है, राइट? उसके बाद हम लोग खाली कुछ ऐड करें, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में क्या है, हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं, ये टेबल से समझो, टेबल से समझाते हैं। ठीक है। अभी चलते हैं टेबल। यहां पे क्या लिखा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क जब भी आता है तो ये होता है एक कंडीशन, कि एक कंडीशन हो जाता है उसके बाद, कि इसके बाद जो आए उसको, और ये वाला हम लोग को हमेशा याद रखो कि इसके बाद कंडीशन कुछ भी आ सकता है, जैसे तरीके से होता है। ये वाला पार्ट थोड़ा पढ़ लेना एक बार घर पे जाओगे तो आज जाने के बाद, कि इसमें कैसे होता है। एक चीज होता है ग्रीडी या नॉन ग्रीडी का कंसेप्ट होता है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता जाता क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए इतना कंफ्यूज करना नहीं चाहता। तो बेसिक में ये समझो, अगर मेरे को +91 ऐड करना है तो ये कंडीशन बेस्ड वेरिएबल है। कंडीशन में मैं क्या चेक करता हूँ, ये प्लस को मैं पहले स्किप मारता हूँ,
क्यों? प्लस अलाउड नहीं है तो ये बैकस्लैश देके प्लस करके उसको स्किप मारता हूँ। अगर देखो ये बैकस्लैश के एस्केप स्पेशल कैरेक्टर, बिकॉज प्लस इज ए स्पेशल कैरेक्टर क्योंकि एडिशन होता है, राइट? यस हेलो। यस सर। यस सर, यस सर। यस तो सर। उसमें उसको स्किप मारता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ क्योंकि मेरे को +91 चाहिए और +91 एज ए स्ट्रिंग चाहिए। और प्लस यहाँ पे अगर मैं खाली डालता तो क्या होता? मैच वन और मोर ऑकरेंसेस हो जाता। यस सर। समझ में आ रहा यस है? सर। यस सर। ये इसीलिए ऐड किया तुम लोग को समझने के लिए। अगर देखो क्या कहेंगे, स्लैश डी प्लस करके हम लोग डाल देते थे कहाँ पे, जो ये वाले पार्ट में कहाँ पे गया, देखो स्लैश डी प्लस, राइट? दिस यस इज सर। ऑल्सो कैरेक्टर ऑलरेडी जो कि स्पेशल कैरेक्टर है। अगर यस मैं सर। यहाँ पे काली प्लस डालूंगा तो उसको क्या समझ में आएगा कि मैच वन और मोर मैच वन ऑकरेंसेस। मोर नंबर। बट मेरे को करना नहीं है वो। तो उसके लिए मैं क्या किया, उसको स्किप मारा ये वाला चीज डाल के बैकस्लैश, राइट? उसके यस बाद सर। 91। तो +91 मेरा वैलिडेट हो गया। उसके बाद क्या होगा, मैंने क्या किया, स्लैश एस डाला। स्लैश एस मतलब क्या है? स्लैश एस यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैच एनी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, दिख रहा है? यहाँ पे यस। क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एस, मैच एनी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर मतलब आइदर वो टैब हो सकता है, नहीं तो न्यू लाइन हो सकता है, नहीं तो स्पेस हो सकता है उस चीज को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है? तो एक यस स्पेस सर। को मैच करने के लिए उसको किए। हाइपेन मतलब क्या है? हाइपेन का मतलब क्या है यहाँ पे होगा, देखो कि हाइप वहां से आगे होगा। ठीक है? यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, इसमें नहीं है। ठीक है, वहां से आगे होगा मैच, एक एक व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है उसके आगे कर लो। और फिर से मैंने कंडीशन डाला कि ये वाला ब्रैकेट के अंदर ये रखना चाहिए। और ये वाला कंडीशन होता है अपना जो एग्जिस्टिंग था यहाँ पे ऊपर, सॉरी। हम्म। यस सर। ठीक है? क्वेश्चन मार्क इसलिए सर? कंडीशन ग्रीडी नॉन ग्रीडी का कंसेप्ट होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन में ज्यादा समझाना, बस समझ लो कि अच्छा अच्छा, कंडीशन के लिए। ओके। तो ओके सर, थोड़ा ओके। थोड़ा अभी के लिए समझ जाओ ये सब। हम लोग बाद में उसको अगर चाहते हो तो डिटेल समझने के लिए समझा दूंगा। बट सोचो कि ये कंडीशनल कैरेक्टर होता है जिसके बेसिस में हम लोग करते हैं। यहाँ पे नहीं तो समझ सकते हो, अगर ये पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि ये अगर कंडीशन होता है तो इसको एक्सेप्ट करो, ये अगर कंडीशन होता है तो इसको। मैच एक्सप्रेशन ए ओनली इफ इट फॉलोज बी। एक्सप्रेशन ए को एक्सेप्ट करो अगर ये बी को फॉलो करता है। यहां पे देखो, मैच एक्सप्रेशन ए ओनली इफ नॉट प्रेसिडेड बाय बी। अगर बी के बाद प्रेसिडेंट नहीं होता देन ओनली मैच करो एक्सप्रेशन को। इसलिए कंडीशन बेस्ड बोलते हैं। ठीक है? अभी के लिए पहले ये सोचो कि +91 कैसे होता है, उसके बाद चलते हैं आगे। मैच सोचो कि ये इसका प्लस, ये जो क्वेश्चन मार्क है किसके अंदर है, इसके अंदर है, राइट? देखो यहाँ पे, देखो कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद बाहर में दिया हुआ है। सिमिलर अगर ये देखोगे तो इसका एंट्री कहाँ तक है, यहाँ तक है, राइट? ये अगर इसको मैच करो जब ये एक्चुअली मैच हो। समझ में आया? यस सर। ऐसा टाइप का है। तो अभी उसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, मैं खाली तुमको खाली एग्जांपल देने के लिए, प्लस का एग्जांपल देने के लिए बताया था। बट ठीक है, इसके केस में अगर मैं इसको मोबाइल नंबर को मैच करता हूं, क्या होगा? ट्रू होगा। क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि यहाँ पे +9 का कंडीशन यहाँ पे मैच किया। यस पहले सर। वाले केस में फॉल्स हो रहा था, राइट? सेम चीज अगर देखोगे, सॉरी, यहाँ पे फॉल्स हो रहा था, राइट? बट यहाँ पे ट्रू हुआ। क्यों? बिकॉज मैंने पैटर्न को चेंज किया और मैंने बोला कि भाई नहीं, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ये पैटर्न के हिसाब से देखना है कि +91 हो तो भी अलाउड करे। अगर यस सर। इसके ये चीज को मैं और एक चीज करता हूं कि 91 हाइपेन कर लेता हूं तो क्या होगा? तो भी ट्रू आएगा। क्यों? बिकॉज मैंने हाइपेन में इसमें यहाँ हमने पे अलाउ अलाउड किया किया है। है, यस सर। राइट? यस सर। अगर सोचो ऐसा किया, अलाउड करेगा कि नहीं करेगा? ट्रू ट्रू आएगा। क्योंकि व्हाइट स्पेस कैरेक्टर भी मैंने अलाउड किया है, यस सर। मैं स्लैश एस करके। यस क्लासेस। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर सोचो सर हमने 9 1 हटा दिया तो? ये 91, नहीं ये वाला, ऊपर वाले जो, हाँ ये सर। देखो क्या होता है, ये वाला था पूरा। यस सर। क्यों ट्रू हुआ बताओ? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। क्योंकि कंडीशन मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। दिस इज नॉट मैंडेटरी वन। मैंडेटरी। यस सर। इट इज नॉट मैंडेटरी वन। अगर इफ तुमको ये देना इफ है ये तो दो, होगा तो आएगा, नहीं नहीं तो देना है फिर तो आएगा। भी चलेगा ये। यस सर। ठीक है? अगर मैंडेटरी करवाना है तो सर क्या क्या करना होगा?
मैंडेटरी लगाया ना तो उसके बेसिस में तुमको हटाना पड़ेगा, कुछ चीजें चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़ा बहुत। और जैसे ओके इसको 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 मैंडेटरी लगाना है तो उसके बेसिस में तुमको हैंडल करना पड़ेगा कि +9 को कितना रखना है, कितना नहीं रखना है। और ये सारे चीज को पूरा का पूरा अगर सोचो कि इंटरनेशनल बेसिस पे हैंडल करना है, उसका हैंडलिंग अलग है। ठीक है, यस तो सर। सी ये इसका तरीका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है। कौन कैसे रखेगा वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है जनरली। एक मिनट, मैसेज है। गाइस 1 minute, आई एम गेटिंग ए कॉल फ्रॉम ऑफिस। हे, आई एम बैक। ओके, ये समझ में आ रहा था कहाँ पे हम लोग थे? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा था ना, कंडीशनल बेस्ड है। अगर सोचो कि मेरे को कोई कुछ बोल रहा था लास्ट में जाने से पहले, क्या बोल रहे थे तुम? प्रिंस कह रहे अच्छा, थे हाँ, कि मैंडेटरी करना। तो ये कंडीशन हटा देंगे। ओके, तरीका होता है अलग अलग। सोचो कि मेरे को यहाँ पे 9 to मैंडेटरी करना है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा इसको हटा दूंगा, इसको थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा। ये चीज को इतना सारा नहीं लिखूंगा, मैं पैटर्न 1 करके और एक बना देता हूँ, ठीक है। सोचो यस सर। ऐसे करूंगा, पैटर्न 1 करूंगा। और यहाँ पे ये सारा चीज भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को ये चीज भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे को सोचो +9 ब्रैकेट के अंदर भी चाहिए ना, ब्रैकेट के अंदर भी चाहिए कि ब्रैकेट के बाहर ही नहीं चाहिए, +9 खाली चाहिए, तो स्लैश करके +9 इससे हटा दूंगा। तो ये जरूरत नहीं है। और ये से इसको ये कर सकते हैं। और +9 ये सारे भी हटा सकते हैं। ये कुछ जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क की पूरा हटा देंगे अगर तुम चाहते हैं तो। ये कुछ जरूरत नहीं है। +9 को खाली मैंडेटरी करना है, फंडामेंटली रख देंगे, इसको खाली इतना ही रख देंगे। ये भी हटा देंगे तो भी चलेगा। तो वो क्या हो जाए, +9 को हर जगह पे। बट इसके लिए तुमको फिर से स्पेसेस वगैरह अलाउड नहीं करेंगे। तो स्पेसेस वगैरह के लिए तुमको ये डालना पड़ेगा। क्लासेस करके ये सब। हम्म। और इसका क्वेश्चन मार्क यहाँ पे तो। सर 9-1 से पहले जो स्लैश है वो उसको भी हटाना पड़ेगा या फिर? कौन सा? नहीं नहीं, ये हम लोग एस्केप कर रहे हैं ना, एस्केप कैरेक्टर है वो। यस सर। और सोचो इसको कंडीशन हटा देंगे, ये हटाना जरूरत नहीं ना। ये चीज शायद चलना चाहिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है हम लोग के लिए भी करना, एरर भी दे सकता है। हाँ लग रहा है। इसका 96 1 होगा। ये हो गया स्टार्ट। उसके बाद ये हो गया एस्केप कैरेक्टर +9 और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंडेटरी में अगर एस हटाना चाहे तो वो भी कर ये सकता सर हूँ। 9-1 को भी स्ट्रिंग डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि
हमको 10 डिजिट लेना है। ऐसे कर देंगे तो भी चलेगा आई थिंक। यस। यस सर। हाँ, मोबाइल में ये हो गया। अगर मैंडेटरी हो गया तो देखो ये फेल हो गया, देखा? देखा? नहीं। प्रिंस कहाँ है? प्रिंस आर यू देयर? यस सर। हेलो। ये दिखा? देखो फॉल्स यस आया। सर। यस सर। तो अगर तुमको मैंडेटरी करना है तो ऐसे लिख सकते हो, +9 करके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वगैरह हटा देना बस। तो इस केस में अगर मैं ऐसा भी देता हूं तो भी एक्सेप्ट करेगा। कैसे? बट मैंडेटरी है +9 1। देखो ट्रू आएगा। और इसमें हाइपेन दूंगा तो भी चलेगा, देखो। यस सर। ठीक है? यस यस सर। सब सर। सबको समझ में आ रहा है यस क्या सर। यस क्या सर। कर रहे हैं हम लोग? रेडी? तो सर ज्यादा सबको ज्यादा माइंड में रखने की जरूरत भी नहीं मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, ज्यादा माइंड में रखने की जरूरत नहीं, बस ये वाला चीट शीट फॉलो फॉलो कर देना, बस एक बार समझ लेना। ठीक है। बट ज्यादा डिटेल्स में मत जाओ, जनरली तुम इस कोई इतना रेजेक्स में कोई जाता नहीं है। ये तो यस सर। उसने पूछा मेघना ने बोल के मैंने कवर करने की कोशिश की। बट कोई रेजेक्स में इतना ज्यादा पूछता नहीं है, बेसिक तुम ये फोन नंबर या ईमेल आईडी वही सब करोगे। मैंने ईमेल आईडी के लिए भी एक डाला हुआ है, अगर तुम चाहते हो तो मैं समझा सकता हूँ कल। अगर देखो ये पूरा थोड़ा कुछ कम, मतलब उतना ज्यादा कुछ नहीं, मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन देख के लिखा हुआ है क्या क्या अलाउड करेगा। ठीक है? तो ये अगर तुमको चाहिए तो तुम ले सकते हो, एक बार बैठ के उसको घर पे एक बार दे सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि तुम एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है? सोचो, ओके एक खुद सर। से सर ट्राई करो। एक्चुअली सर एक्चुअली क्या हो जाता है, कंटिन्यू मतलब क्लासेस हो जाती है, फिर ऑफिस होता है, सब चीजों की वजह से ना, तो मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना मतलब मुश्किल हो जाता है। देखो अभी तो डिफिकल्ट होता रहेगा, तुमको कैसे भी करके 3 से 4 घंटा निकालना पड़ेगा डेली। अभी यस मेरा सर। दिन का वर्किंग टाइम कितना है तुमको पता है? How I am sparing time for the slides, then making the things for you, these ones, collecting these ones. See, अभी देखो मैंने इतने सारे तुमको तुम्हारे लिए बता के बना के रखा हुआ है। अभी मैं तुमको टास्क दूंगा, सोचो मैं सोच रहा था टास्क दूंगा आधार का। चलो बना के लेके आओ, आधार कार्ड का वैलिडेशन। तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं कैसे कहाँ से बनाऊंगा, तुम लोगों को बताऊंगा? यस सर। वो तो है सर। ओके, कल के लिए एक टास्क है तुम लोगों के लिए, ठीक है? टास्क क्या है, आज कंप्लीट करते हैं इतना। अभी अगर तुमको चाहे तो मैं कल अगर सोचे तो एक बार पैटर्न मैचिंग ये वाला बात समझा दूंगा। ये ईमेल का है, ठीक है? ईमेल का पैटर्न मैचिंग है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? वो थोड़ा बता दूंगा तुम लोगों को अगर चाहिए तो। नहीं तो हम लोग कल जाएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है? बट टास्क क्या है तुम लोगों के लिए कि ये दिख रहा है सब लोग, ईमेल फोन नंबर ऐसे सब कुछ मैंने दिया हुआ है तुमको, अगर जो भी देखना है तो देख सकते हो। और कुछ को देखो, हम लोग ने फाइंडल सर्च सब एसयूबी ये दोनों कंप्लीट किया, मैच भी किया। बट सर्च और स्प्लिट और फाइंड आईटीआर भी एक एक फंक्शन है, ओके? आरी का, आरी मॉड्यूल का। तुम एक्सप्लोर करोगे आरी मॉड्यूल तो बहुत कुछ चीज तुमको पता चलेगा। तुम्हारा मेघना तुम्हारा क्लियर हुआ ना अभी? कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? यस सर। या देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का भी मैंने दिया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है? अभी यस सर। अभी इसको देख के चाहो बनाओ, नहीं देख के चाहो बनाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एक चीज में क्वेश्चन तुमको दे देता हूँ, एक टास्क देता हूँ छोटा सा, ठीक है? जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट यूएस हाँ। फोन नंबर, यूएस फोन नंबर एंड टोल फ्री नंबर। इजी है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? और वहां यूएस सर नंबर की कंडीशन क्या होती है, +1 से चालू होता है और उसके बाद डिजिट क्या होते हैं सर? मैं बता देता हूँ। दोनों नंबर ही इसलिए दिया है तुम लोग को, इजी होगा समझने के लिए।
और एक वैलिडेट कर देना एक यूजर आईडी जहां पे डॉट भी अलाउड है। क्या 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 अलाउड है बता देता हूँ। A to Z 0 to 9 डॉट अलाउड है, @ अलाउड है, और एक ही ये देता हूँ तो भी आ जाएगा, बट ठीक है। डॉट ना, डॉट है, स्लैश है, हाइफन है, ये तीनों अलाउड है, और कुछ अलाउड नहीं है। और लेंथ शुड बी 10 मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, और 8 मिनिमम, मैक्सिमम लेट्स से 12। ठीक है। और इसका एग्जांपल देता हूँ, वैलिड यूएस फोन नंबर। देखो एक दे देता हूँ यहाँ पे, यूएस फोन नंबर फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है, दीज आर द 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ यूएस फोन नंबर। अभी देखो ये अगर उस वो पूछती नहीं कौन, मेघना, तो मैं ये टास्क भी नहीं देता तुम लोगों को, नहीं तो रिजेक्ट में कवर करता। बट तुमने पूछा दिया है तो तुम करो। ठीक है, ये कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 0 to 9, सर ओके, एनी नंबर। और टोल फ्री नंबर का क्या होता है, 4 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, XXXX हाइपन XXXX XXXX, ऐसा होता है। सर इसमें तो स्पेस है, आपने तो स्पेस डाला ही नहीं। क्या क्या? सर यूएस फोन नंबर में तो स्पेस है, हाँ, तो इसमें तो आप स्पेस नहीं बोले, सिर्फ हाइपेन और। किस में हाँ है सर, तीन? ऐसे ही रहता है, 3 3 4। समझा नहीं, किस में क्या बोला मैंने, मेरे को क्लैरिटी नहीं मिला। ओ सॉरी सर, सॉरी सर, मैंने वो जो यूजर आईडी को यहाँ पर वो वाला देख लिया, नहीं, सॉरी। मिक्स मत करो। ठीक है, और इसका अलग से फॉर्मेट होता है ये सर, ये। मैंने यूजर आईडी को वहाँ पर यूएस मोबाइल नंबर समझ लिया, ठीक है, इसलिए सर। नहीं कुछ इश्यू नहीं रे, टेंशन मत लो तुम लोग इतना। ये 3 टास्क है तुम लोगों के लिए। ठीक है, ये सर। करो, ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, टेंशन मत लो, करो। बट मैं बोल रहा हूं कि तुमको गलत हो सही हो तुम करके दो। ठीक है, ये ओके सर। टास्क हो गया तुम लोगों के लिए। ठीक है, एक बार बताओ, तुमको अगर नहीं होता मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा, कल प्रोग्राम में दे दूंगा, एनीवे मैं बना के दे दूंगा तुम लोग प्रोग्राम। इसके लिए तुम लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तो पहले से ही बोलता रहा हूँ। बट व्हाट आई टेल कि तुम प्रोग्राम प्रैक्टिस करो। और ये भी दे दूंगा तुम जितना भी करना चाहो। देखो ये कैलकुलेटर प्रोग्राम दे रहा हूँ ना, अब क्या बताऊँ, तुम लोग तो नहीं करोगे नहीं करोगे। जिसके लिए अपने लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ तुमको जितना समझ में आए करना के लिए। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि यू हैव टू डू इट। तुम समझो और करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ठीक है, गूगल करो, देखो, पढ़ो। अब मैं तो बोल रहा हूँ गूगल करके करो। और ये वाला अगर चाहिए तो ये वाला देख लो एक बार, फिर से मैं बता देता हूँ, ये वाला देख लो, यहाँ पे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और मैं थोड़ा अगर होता है तो सॉरी, ऑलरेडी वीडियो में कवर किया है, तुम लोग स्निपेट ले सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ कवर किया है, राइट। ये सर। तो ये भी तुम यूज कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है फोन नंबर का कैसे इंडिया का करते हैं। और यहाँ पे मैंने हम लोगों ने 2 प्रोग्राम करके भी देखा, और प्रोग्राम में मैं दे दूंगा। और यहाँ पे पैटर्न मैचिंग भी मैंने बता दिया है। यूजर आईडी का अगर जाओगे तो यूजर आईडी ईमेल का कुछ कुछ है उसमें, ऐसा समझ के चलो। क्योंकि सोचो, अगर एक हिंट दे रहा हूँ इतना बस, ईमेल का भी कुछ कुछ यूजेस वैसे ही है। तो ईमेल अगर तुम समझोगे करोगे, बट ईमेल में कल समझाऊंगा, इसलिए यूजर आईडी बता दे रहा हूँ। इफ यू कैनॉट डू देन विल डिस्कस, डोंट वरी। ओके, बट ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम घर पे पढ़ के ये चीज करके आओ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाद में। क्लियर हुआ सबको टास्क? ये यस सर। सर। चलो, चलो आज के और कुछ डाउट है कि स्टॉप करें? स्टॉप करें? चलो, ये सर। अगर उसको कवर करने के बाद कल थोड़ा और खुद ही कम टाइम लेंगे, उसके बाद हम लोग फाइल हैंडलिंग में जाएंगे। ठीक है, फाइल हैंडलिंग करेंगे कल। ठीक है, चलो, बाय बाय, ये टेक सर। केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।
थैंक यू सर।